Hi everyone, good morning. This is Ashok Lohani. Welcome you again with the next topic, that is land degradation and conservation measures. Student, in the last topic I made you understand about land resources. Now I move to the next topic, that is land degradation and conservation measures. First of all, I would like to define the word land degradation. Students, land degradation means it is a process in which the value of the biophysical environment is affected by a combination of humans induced processes acting upon the land. Means land land has been affected by human activities only, like mining, opening of pits, excavation of minerals. Means we do some activities on land to make a change, or you can say to develop our environment, to develop our surroundings. So we do some changes over the land which causes disturbance of land, that is undesirable change for environment, that is called land degradation due to some human activities. So I am repeating the definition again. It is a process in which the value of biophysical environment is affected by a combination of human induced processes acting upon the land. Right? Means any change or disturbance to the land, undesirable change on land, that is called land degradation. Now I move ahead. We have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. 95% of the 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural force to cause damage to land. Means 95% of our basic needs come from land in the form of food, shelter and clothing. These are the things that we obtain from land. And human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural force to cause damage to land. Aggravated means बुरी हालत कर दी, बदतर हालत कर दी, means to make worse situation to the land. So humans activities have not only brought about degradation of land. हम लोगों ने लैंड का केवल डिग्रेड नहीं किया बल्कि उसकी हालत ख़राब कर दी, उसको काफ़ी बुरी अवस्था में पहुंचा दिया, but also aggravated the pace of natural force to cause damage to land. At present, there are about 130 million hectares of degraded land in India. About 130 million hectares of degraded land in India आज की डेट में देखने को मिलता है. Approximately 28% of this land belongs to the category of forest degraded area. 56% of it is water eroded area, and the rest is affected by saline and alkaline deposits. Saline and alkaline deposits means नमकीन पानी, जो एसिडिक वाटर होता है फैक्ट्री से निकला है या रॉक से मिनरल वाटर निकला, जो सलाइन इकट्ठा हो जाता है विच कैन डैमेज द सॉइल, विच कॉजेज सॉइल डिग्रेडेशन. तो वो सलाइन और अल्कलाइन डिपॉजिट्स की वजह से होता है. तो ये एरिया इनकी वजह से अफेक्टेड हुआ है. किसकी वजह से? 56% ऑफ द वाटर इरोडेड एरिया एंड रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट. So these are the factors which are responsible for land degradation in some areas. Means the percentage of land degraded area in India out of 130 millions, right? Now I would like to describe the main factor which are responsible for land degradation. Some humans activities such as deforestation, means cutting of trees, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. भाई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एरिया आपने सुना होगा उसके बारे में, डोलोमाइट माइनिंग के बारे में. पूरा एरिया जंगल का एरिया है, सब वो एक्सकवेट कर दिया, वहाँ से खोद दिया, जंगल में पेड़ वेड़ सब हटा दिए और वो ओपन पिट्स के रूप में आज की डेट में देखे जा सकते हैं. तो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए लैंड डिग्रेडेशन का. डोलोमाइट माइनिंग वहाँ से की गई थी और आज की डेट में भी कई जगह माइनिंग होती है. Mining sites are abundant after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation.
उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो एरिया जहाँ मिनरल्स भी पाए जाते हैं और यहाँ पर मिनरल्स को निकालने के लिए खुदाई होती है। कोयला वगैरह, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें, एल्युमिनियम, तो इस एरिया में से निकाला जाता है और इसके लिए खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के बाद ये एक्सकवेट मीन्स गड्ढा खोद के मिनरल्स को निकालना, या डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से मिनरल्स को निकालना। तो जिसके बाद ये एरिया ऐसी के ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं और वो लैंड डिग्रेडेड का रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है। गड्ढे खुदे छोड़ दें तो ऊपर की फर्टाइल सॉइल खत्म हो जाती है और वो उसके ऊपर पॉइजनस मिनरल्स मिल जाते हैं नीचे से निकाले हुए, तो विच लीड्स टू अ सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स, माइनिंग ही एक अकेला फैक्टर नहीं है जो लैंड डिग्रेड करता है। माइनिंग के अलावा डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, ये लैंड को जो सॉइल इरोजन होने से बचाता है फॉरेस्ट का एरिया। अगर फॉरेस्ट एरिया काट दिया जाए तो लैंड डिग्रेडेशन पक्का निश्चित है। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, प्लांट्स के, विच होल्ड द सॉइल फर्मली एंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, तो वो सॉइल इरोजन की स्थिति फिर बन जाती है अगर जंगल कट जाए। तो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और दूसरा एक और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो है आपका ओवर ग्रेजिंग, जिसमें कि एनिमल्स जो काउज वगैरह है, कैटल्स हैं, ये सब लोग ओवर ग्रेज करते हैं एरिया को, वहाँ पर जड़ के साथ पौधों को निकाल देते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी सॉइल फ्री लूज हो जाती है और वो सॉइल इरोड होती चली जाती है। और भी कई सारे कारण हैं लैंड डिग्रेडेशन के। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा पंजाब और हरियाणा, ये एरिया ऐसा है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने की वजह से राइस उगने लगा है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप राइस को ग्रो किया जाता है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। एंड इन स्टेट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। मीन्स हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन एरिया में ओवर इरीगेशन की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। लोगों ने क्या करा, ज़मीन से पानी निकाला काफ़ी सारी मात्रा में और उसे खेतों में डालना शुरू किया। हमारे जो आज के मॉडर्न डिवाइसेस हैं, पंपिंग, ट्यूबवेल्स वगैरह, इनकी हेल्प से, और ओवर इरीगेट करके उससे क्या होता है, सॉइल के ऊपर पानी भर जाता है, तो वहाँ की ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और नाइट्रोजन पावर जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्रॉप्स वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एरिया बेकार हो जाता है काफ़ी दिनों तक। तो ओवर इरीगेशन पंजाब और हरियाणा में मेन कारण है, जहाँ पर ये राइस जो कमर्शियल क्रॉप है इसको डिस्ट्रॉय होने का, और गेहूँ को भी। तो ओवर इरीगेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हुआ, लैंड डिग्रेड होने की वजह से वहाँ पर कमर्शियल क्रॉप खराब हो गई। तो ये वहाँ का एक एग्जाम्पल। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग। पानी इकट्ठा हो जाएगा ओवर इरीगेशन से, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। अब वहाँ पानी का जो नमक है, सैलाइन वाटर है, जो मिनरल है, वो इकट्ठा हो जाता है जिससे क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री बहुत सारी है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में भी। अब ये इंडस्ट्रीज़ को आज की डेट में मॉडर्नाइजेशन तो है ही, ग्लोबलाइजेशन भी है ही, इंडस्ट्री से काफ़ी सारा डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। बट इसका एक दूसरा रूप भी देखने को मिला जो कि है किलर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री आज की डेट में किलर इंडस्ट्री का रूप धारण कर चुकी है, जिसकी वजह से पॉइजन, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, इस सारे काम हो रहे हैं। सो द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इंडस्ट्री जो है वहाँ पर ग्राइंडिंग का काम होता है, उससे जितना भी मिनरल निकलता है, सीमेंट वगैरह निकलता है, पत्थरों का जो चूरा निकलता है, मिट्टी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी जो कैल्केरियस मिट्टी बन जाती है, कैल्साइट, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा भर जाती है, सोप स्टोन हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से वहाँ की मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो एरिया डिग्रेड होना चालू हो जाता है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफियर। इन इंडस्ट्री से जो भी हैं, सीमेंट इंडस्ट्री और कैल्साइट इंडस्ट्री, इनसे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। ये दो जगह जाके मिलते हैं, एक हमारे एनवायरनमेंट में, एयर के अंदर, और एक पानी में।
एयर में जाके इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, वो फिल्ड अप हो जाते हैं, जिससे कि एयर पोल्यूशन होना निश्चित होता है। तो हैवी लोड होने के बाद वो सीधा पानी में आके अटैक करते हैं और पानी में सेटल डाउन हो जाते हैं, और पानी में सेटल डाउन होने के बाद वहाँ पर इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी प्योर रूप से फिल्टर नहीं हो पाता, सीपेज नहीं हो पाता, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड बेकार हो जाती है। और जैसे हम सीमेंटिंग फर्श वगैरह बनाते हैं तो वो एक सॉलिड स्टेट बन जाता है। तो ऐसा ही पानी वाटर लॉगिंग के अंदर भी ये कैल्साइट और आपका सोपस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री से निकलने वाला डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन होने की वजह से उसको डिग्रेड कर देता है, वहाँ पर फिर क्रॉपिंग नहीं हो पाती। तो ये जो है द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration, कम कर देता है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस को ऑफ वाटर, पानी में से, इनटू द सॉइल। अब जो पानी से सॉइल में सीपेज जो होना चाहिए पानी का, वो मिट्टी के अंदर जो पानी जो है मिट्टी के अंदर जाता है, फिर वो नीचे के पौधों की जड़ों तक जाता है और क्रॉप्स ग्रो करती हैं। लेकिन इनकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती, सीपेज ऑफ वाटर नहीं हो पाता। इट रिटार्ड्स, उसे कम कर देता है, द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड, राइट।